وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين۔ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر علم سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں بنائی۔ آپ دیکھیں نا، علم کی وجہ سے حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو فرشتوں سے زیادہ درجہ ملا۔ دیکھیں تو صحیح، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ کہ آدم علیہ السلام کو ہم نے چند نام سکھائے، چند نام پڑھوائے، چند ناموں کا علم بتلایا۔ پھر اس نام کو حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کے سامنے بیان کیا، فرشتوں کو بتلایا، فرشتوں کے سامنے پڑھا، بتایا فرشتوں کے سامنے، تو فرشتے نے سر جھکا دیا کہ واقعتاً حضرت انسان کو اللہ تعالیٰ نے علم دے کر کے بڑی بلندی عطا فرما دی ہے، بڑی نوازشیں عطا فرما دی ہے۔ تو علم جو ہے نا، ہم آج اس کو بھول چکے ہیں، پس پشت ہم نے ڈال دیا ہے۔ آج ہم نے علم سے کوسوں دوری اختیار کر لی ہے، ہم نے جہالت کو اپنا دوست بنا لیا ہے، علم سے ہم نے دوری رکھی ہے۔ وہ علم چاہے دنیاوی علم ہو یا اخروی علم ہو، علم علم ہوتا ہے، ہاں، لیکن جو کارگر ہے، کامیاب ہے، کامران ہے، خوشبختی عطا کرنے والے ہے، وہ علم علم آخرت ہے، وہ علم علم دین ہے، علم دنیا نہیں ہے، وہ دنیاوی علم نہیں ہے، وہ اخروی علم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کے ذریعے ہم حضرت انسان کو کیا فرمایا ہے؟ کیا علم کے ذریعے مال کماؤ، دولت کماؤ، دھن کماؤ، دھن دولت اکٹھا کرو، دھن دولتوں کا انبار بناؤ؟ نہیں، علم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تم مجھے پہچانو۔ بغیر علم کی چاہے انسان غلو اختیار کر سکتا ہے، چاہے انسان بغیر علم کی، بے راہ روی کی، بے رہبر کی، یعنی جو علم جو انسان کا راہبر بنتا ہے اللہ تک پہنچانے کے لیے، اگر علم نہ ہو چاہے تو وہ راستہ سے کئی کوسوں دور جا کر کے وہ بھٹک جائے گا، یا علم نہیں ہے تو بالکل جہالت میں، یعنی وہ راستہ چلنے کی کوشش ہی نہیں کرے گا۔ آپ دیکھیں نا، ہر چیز کو علم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ پہلے حضرت انسان کی بات کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کی پیدائش سے پہلے ہم تمام کی روحوں کو عالم ارواح کے اندر ایک جلسہ منعقد فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ اس جلسے میں ہم تمام کی روحوں سے ایک معاہدہ لیا، ایک وعدہ لیا کہ حضرت انسان الست بربکم، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یا دوسرا ترجمہ ہو سکتا ہے میں ہی تمہارا رب ہوں، الست بربکم۔ تو ہم تمام کی روحوں نے وہاں اقرار کیا تھا، وہاں شہادت دی تھی، وہاں گواہی دی تھی، بلا شہیدنا، کیوں نہیں ہمارے ربا، آپ ہی ہمارے رب ہے، آپ ہی ہمارے پالنہار ہیں، آپ ہی ہمارے پیدا کرنے والا ہیں، آپ ہی ہمارے اوپر حاوی ہیں، مددگار ہے، یار ہے، آپ ہی ہمارا پروردگار ہیں۔ الست بربکم قالوا بلا شہیدنا، کیوں نہیں آپ۔ لیکن جب انسان دنیا کے اندر آیا، دنیا کے اندر آنے کے بعد بھول گیا اللہ تعالیٰ سے جو وعدہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ سے جو معاہدہ ہوا تھا، وہ سارے کے سارے وعدے، وہ سارے معاہدے، وہ ساری باتیں، وہ سارے قول و قرار ہم بھول چکے ہیں، ہم نے بھلا دیا ہے۔ کیوں بھلا دیا؟ چند کوڑیوں کے خاطر۔ کیوں بھلا دیا؟ جس مال کی، جس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے، جس دنیا کی کوئی گنتی ہی نہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے، اس دنیا کی خاطر اتنے بڑے احکم الحاکمین کو ہم نے بھلا دیا ہے، بھلا دیا ہے بالکل۔ اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ یہ بندے اپنے وعدے کو بھول چکے ہیں، تو انہوں نے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ایک گروہ کو بھیجا، تقریباً 1,24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے، اور سب نے آ کر کے ایک ہی بات بتائی۔ وہ بات کیا؟ کہ رب کون ہے، ہم کس کے بندے ہیں۔ تعلیم وہی پرانی،
तालीम वही पुरानी, इल्म वही पुराना, लेकिन अंदाज नया, तरीका बदल दिया अल्लाह ताला ने। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, नूह नजीब आदम सफीउल्लाह आए, ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह। उसके बाद नूह अलैहिस्सलाम आए, ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नजीउल्लाह। इब्राहिम आए, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह। इस्माइल आए, ला इलाहा इल्लल्लाह इस्माइल ज़बीहुल्लाह। गोया इल्म वही पुराना रहा कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, अल्लाह हमारा रब है, अल्लाह हमारा अहकमुल हाकिमीन है, अल्लाह हमारा पालने वाली जात है। इल्म वही पुराने, लेकिन तरीके लक़ब नए नए दे करके अल्लाह ताला ने तकरीबन 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलातु तस्लीम को दुनिया के अंदर भेजा, ताकि हमें सीधे रास्ते बताए, ताकि हमें भूला हुआ सबक याद दिलाए, ताकि हमें वो जो सबक हम अल्लाह ताला से वादा करके लाए हुए हैं वो सबक हमें फिर से याद दिलाए। अल्लाह के आखिर में, सबसे आखिर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर तशरीफ लाए। फिर अल्लाह ताला ने उनके ऊपर जो कुरान शरीफ नाजिल फरमाई, तो उस कुरान शरीफ की भी अगर सबसे पहली सूरत है सूरह फातिहा, उसमें भी यही कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यहां भी अगर सबक दिया गया है तो सबसे पहला सबक हमें यही मिला है कि वह रब्बुल आलमीन दोनों जहानों का पालने वाला है, वह अहकमुल हाकिमीन दोनों जहानों का सरदार है। ए लोगों भूलो नहीं, ए लोगों राह रास्ते से भटको नहीं, ए लोगों अल्लाह अहकमुल हाकिमीन है, अल्लाह आलमीन का रब है। वही सबक हमें दोहराया। गारे हिरा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में खलवत में जाया करते थे। उस गार में सबसे पहले जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत में थे, जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए। आपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सीने से लगाया और फरमाया, कहिए ए मोहम्मद इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, इक़रा कहिए, पढ़िए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अना उम्मीयुन, अना उम्मीयुन। यानी 3 बार हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सीने मुबारक से लगाए और लगा करके कहिए या मोहम्मद इक़रा, इक़रा। तीसरी बार में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इक़रा, तो गोया सबसे पहला मदरसा गारे हिरा का हुआ। उस्ताद हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शागिर्द बने। उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। तकरीबन मक्का मुकर्रमा के लोगों ने बहुत सताया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, बहुत सताया। वहां से तशरीफ लाए मदीना मुनव्वरा। मदीना मुनव्वरा अब्दुल्लाह इब्न ज़ुरारा, तकरीबन गालिबन यही है हजरत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुरारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके घर में आकर के आपने क़याम फरमाया और वहां से अपने असहाब को तालीम देनी शुरू फरमाई। उसके बाद बात मुख्तसर करता हूं। उसके बाद वहां से चलते चलते बात पहुंच गई असहाबे सुफ़ा तलक। फिर असहाबे सुफ़ा से जो फैज चला, जो नूर चला, जो दरिया चला नूर का, वो दरिया आज हमारे दरमियान है। आज भी हमें यही पढ़ाया जाता है कि अल्लाह का मुल्हाकिमीन है, अल्लाह रब्बुल आलमीन है, अल्लाह दोनों जहानों का पालने वाला है, अल्लाह ही पालनहार है। गोया आलम अरवाह के अंदर जो सबक हमें पढ़ाया गया था, उस सबक की तरदीद के लिए, उस सबक को दोहराने के लिए, उस सबक को हमें फिर से याद दिलाने के लिए आज अल्हम्दुलिल्लाह बर सगीर में बहुत सारे मदारिस ऐसे हैं जहां अल्लाह तबारक व तआला के सारे अहकामात, अल्लाह तबारक व तआला की सारी बातें, अल्लाह तबारक व तआला के सारे करामात, सारी के सारे कुदरतें बयान की जाती है और पढ़ाई जाती है, और पढ़ाने वाले अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाते हैं। लेकिन कुछ हजरात ऐसे हैं जो इन मदारिस के नाम पर बड़ी बदमाशी करते हैं, बड़ी बदमाशी करते हैं। अल्लाह उन तमाम को हिदायत दे जो मदारिस के नाम पर बदमाशियां करते हैं। ये इल्म जो है ना मेरे भाइयों, ये बहुत जबरदस्त, और जितना इसके बारे में तारीफ किया जाए इस इल्म के बारे में इतना कम है। मैं एक बुजुर्ग का वाकया सुना करके बात को मुख्तसर करूं, बात को मुकम्मल करूं।
दोस्त मोहम्मद कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना दोस्त मोहम्मद कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह, ये मुल्तान के करीब एक शहर है बहावलपुर, वहां से ये हजरत इंडिया के अंदर दारुल उलूम देवबंद तशरीफ लाए पढ़ने के वास्ते, और आने में ताखीर हो गई, दाखला बंद हो चुका था। फिर भी आप रहमतुल्लाह अलैह गए मोहतमीम साहब के पास कि हजरत इस तरीके का मामला है, मैं बहावलपुर से आया हुआ हूं और मुझे पढ़ना है। तो मोहतमीम साहब ने फरमाया कि भाई हमारे यहाँ इकामा के अंदर जितने तालिब इल्म की जरूरत थी, जितनी जगह थी, हमने उतने तालिब इल्म ले लिए हैं, रहने की जगह नहीं है। रही बात खाने की, तो खाने हमारे मतबख में, हमारे मतअम खाने में जितना खाना बनता है वो सब तलबा को मुकम्मल हो चुका है, अब गुंजाइश नहीं है, लिहाजा रहने और खाने का तुम इंतजाम कर लो, हमारे यहाँ के पढ़ लेना, कोई हरज की बात नहीं है। आप परेशान हुए तो अल्लाह ताला ने सूझबूझ अता फरमाई। पास में एक मस्जिद थी, वहां चले गए। मस्जिद के खादिम से आपने फरमाया कि भाई मैं आपके यहाँ झाड़ू लगा दिया करूंगा, साफ सफाई में आपका हाथ बटा दूंगा, मुझे मस्जिद के कोने में रहने के लिए एक जगह दे देना। चुनांचे जगह का इंतजाम हो गया, रहाइश का इंतजाम हो गया। अब इस तशवीश में है, इस पेचोताब में है, इस परेशानी के आलम में है कि रहने का जगह तो हो गया, एक दो दिन फाके से गुजर गई, अब तीसरे चौथे दिन भूख की शिद्दत बढ़ी, तो क्या सिर्फ पढ़ लेने से नहीं होगा, खाने के वही को इंतजाम करना पड़ेगा। चुनांचे असर की नमाज के बाद दोस्त मोहम्मद कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह बैठे हुए थे, असर की नमाज के बाद मगमूम बैठे हुए थे। एक बूढ़ी अम्मा दरवाजे के पास, लोगों का आना जाना लगा हुआ था, दरवाजे के पास खड़ी इसका माजरा देख रही थी कि ये शख्स मगमूम लग रहा है। आवाज दी उस बूढ़ी अम्मा ने, तो ये हजरत गए और जाकर के कहा क्या हुआ। तो उस बूढ़ी अम्मा ने कहा बेटा आप बड़े अच्छे खानदान से लग रहे हो, आप बड़े अच्छे लग रहे हो, बड़े अच्छे घराने से लग रहे हो, क्या माजरा है, आप परेशान लग रहे हो। दोस्त मोहम्मद कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अम्मा जाओ आप अपना काम करो, आपका अलग मामला होगा, मेरा अलग मामला है, लिहाजा आप चले जाओ यहां से, आप चले जाओ लिहाजा यहां से। तो उस माँ ने इसरार किया, उस बूढ़ी अम्मा ने इसरार किया कि बेटा बताओ ना, तुम्हारे गम में मैं जरूर शरीक हो जाऊंगी, हो सकता है गम को हल्का कर दूं। चुनांचे बहुत इसरार के बाद दोस्त मोहम्मद कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अम्मा मसला इस तरह है, मैं बहावलपुर मुल्तान के करीब से आया हुआ हूं और मुझे यहाँ दाखला नहीं मिल रहा था, बड़ी मुश्किल से दाखला मिला है और रहने का जगह हो गया, खाने का इंतजाम नहीं हो रहा है, मैं इसी पेचोताब में हूं कि खाने का इंतजाम कैसे होगा। तो उस बूढ़ी अम्मा ने कहा बेटा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बेटा घबराने की जरूरत नहीं है, मैं एक बेवा हूं, मेरा कोई बच्चा नहीं है, मैं बगल में एक मकान में जाती हूं, वहां बर्तन धो लेती हूं, 2 चपातियां मिल जाती है मुझे, एक चपाती मैं खा लिया करूंगी और एक चपाती पर तुम गुजारा कर लेना। चुनांचे खाने का भी मसला हल हो गया। अब पूरे हजरत फरमाते हैं कि मदरसे से खाने का वक्त होता, जब छुट्टी हो जाती सारे बच्चे मतअम खाने की तरफ खाना खाने के लिए जाते, तो मैं गेट की तरफ जाता तो बूढ़ी अम्मा हाथ में रोटी लेकर मैं इंतजार कर रही होती। पूरा 1 साल मुकम्मल हुआ, फिर मेरा दाखला हो गया अंदर और फिर मेरा खाने का इंतजाम, रहाइश वगैरह सब हो गया। मैं फारिग होने के बाद अल्लाह ताला ने उम्रा की सआदत, माफी चाहूंगा हज की सआदत नसीब फरमाए और मैं हज में गया। वहां जाकर के मदीना मुनव्वरा में एक दिन मैं आराम कर रहा था, अचानक क्या देख रहा हूं कि एक खूबसूरत महल नुमा है, एक तख्त है, उस महल के अंदर वो तख्त सजाया हुआ है, वो तख्त ज़ेबो ज़ीनत से संवारा हुआ है, ज़ेबो ज़ीनत से आरास्ता किया हुआ है। और क्या देख रहा हूं कि वो बूढ़ी अम्मा उसी तख्त पर बैठी हुई है। उस बूढ़ी अम्मा को मैंने देखा कि वो तख्त पर बैठी हुई है। चुनांचे मैं गया, मैंने सलाम किया, उस बूढ़ी माँ ने मेरे सलाम का जवाब दिया। फिर मैंने पूछा अम्मा ये इनामात कैसे, इनाम की बारिशें कैसे हुई। उस अम्मा ने कहा कि बेटा
اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مجھے بغیر حساب و کتاب کا دے دیا ہے۔ تو ماجرا پوچھا تو اس بوڑھی اماں نے بتایا مجھے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں سے فرمایا کہ اس بوڑھی اماں کا، اس بڑھیا کا پورے اعمال کو کھنگالو، دیکھو کیا ہے۔ تو فرشتے نے فرمایا، فرشتے نے عرض کیا اے اللہ اس بوڑھی اماں نے مدرسے کے بچے کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان کا اکرام کیا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے فرشتوں، میرے محبوب کے مہمان کا جو بھی اکرام کرے، میرے محبوب کے مہمان کا جو بھی انتظام کرے، میرے محبوب کے مہمان کا جو بھی انتظام کرے، مجھے اس کا حساب لینے میں شرم آتی ہے، لہذا بے حساب و کتاب اسے جنت میں داخلہ دے دو۔